وہ جو ہے یوں سمجھ لیں کہ جو سسٹم کو جو ہے وہ ان سسٹم میں ان کا شیئر بڑھاتا ہے. ایکچولی سسٹم میں ان کا شیئر بڑھاتا ہے اور اس یعنی کہ ایکیڈیمک ارسپانسبلٹی کو وہ ایکیڈیمکس کہتے ہیں. تو ابھی لیکن یہ کہ کیا یہ اتنا یعنی کہ ولگر ہے، تو آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ اصل میں پرابلم کی روٹ کہاں پر ہے، کیوں یہ لوگ یہ اپروچ اختیار کر رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ اپروچ اختیار کر رہے ہیں. کیا ایسا ہے کیوں؟ کوئی سازش ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ فلسفے کے اندر ہم لوگ کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں ڈیولپ کرتے کہ کوئی سازش ہے، لوگوں کو کسی نے قابو کر لیا اور پھر لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں. نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کے پیچھے کوئی تھاٹ پروسیس ہے اور اس تھاٹ پروسیس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. پہلے جو ہے ہم وہی والی جو ہم نے ڈسکشن کی تھی وہ ہم کریں گے. پھر پہلے ہم لیں گے کویشچنس، اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک دوسرا فلیور دوں گا اسی ایشو کو لے کر. کہ ابھی ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ اسٹڈی ماڈل جو ہے وہ ٹھیک، یہ ہم نے دیکھا تھا لاسٹ کلاس میں ایوولوشنری ماڈل، اور اس کو ہم نے اس ماڈل پہ ہم نے بات کی ہے، اور جو بیس لائن تھی نعمان بھائی نے کسی نہ کسی حد تک اس کو یعنی کہ کر دیا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا ریوائز بھی کر دیا ہے. تو اگر پہلے تو ہم نے جو پچھلی کلاس میں لوگ تھے اور میں نے کلاس کو ختم کیا تھا بغیر کوئی کویشچن لیے، تو پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں اس کے آگے کی بات کروں گا. جو چیز باٹم لائن ہے وہ یہ کہ یہ کوئی سازش نہیں ہو رہی. ایوولوشنری اپروچ جو ہے وہ انسانوں کے ایک بہت ہی بنیادی مسئلے کو ایڈریس کرتی ہے، اور اس کی ریفلیکشن اس کا جو اظہار ہے گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، اس کا اظہار جو ہے وہ خاندان کے اندر بھی ہوتا ہے، اس کا اظہار جو ہے وہ سیاسی اور اداروں کے اندر بھی ہوتا ہے، قانون سے جڑے ہوئے اداروں کے اندر بھی ہوتا ہے. اور اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، وہ ٹرم ابھی میں نہیں ڈسکس کر رہا. پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر جو آپ لوگوں کے جو بنیادی سوالات ہیں وہ اس ڈائریکشن میں بہنا شروع ہو جائے. تو آپ لوگ اگر کوئی کویسچن کرنا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی بتایا کہ یہ اپروچ جو ہے آج کل زیادہ تر اپینین میکرز یوز کرتے ہیں، رائٹ؟ جی بالکل. اور اس کے علاوہ اور کیا ایگزامپلس ہو سکتی ہیں اپینین میکرز کے علاوہ؟ are there scholars who also دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ اسکالر ہوتا ہے جو جیسے سیزنڈ اسکالر ہے، وہ صرف ایکیڈیمیا کے لیے چیز لکھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایک ایسا پیپر لکھتا ہے جو صرف ٹیکنیک جاننے والے لوگ یا جو فیلڈ کے لوگ ہیں انہی کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ جسے ہم ریسرچ پیپرز پبلیکیشن کہتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ وہ عام آدمی کے بس کی نہیں ہوتی، نہ وہ عام آدمی کو سمجھ آتی ہے. لیکن جب وہ آتا ہے اس ڈینس آئیڈیا کو ایکسپلیکیٹ کرتا ہے عام لوگوں کے لیے، اور اس ظاہر ہے کہ پھر اپنے آئیڈیا کو ڈائلیوٹ بھی کرتا ہے. تو جب وہ آئیڈیا کو ڈائلیوٹ کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کو یا سیکنڈ لیئر انٹیلیجنشیا کو انفلوئنس کرنا، اس کے لیے بھی وہ یہ اپروچ اختیار کرتا ہے. یعنی کہ آپ نے سنا ہوگا، یہ عام طور پہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ جو ہے
تو اب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ خیال غلط ہے، ثابت ہو چکا ہے یہ، اور اس کے لیے پھر وہ تھوڑا سا ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے، اور ڈیٹا پرووائڈ کرنے کے بعد یہ بتاتا ہے کہ آئیڈیاز کے ایوولوشن کے اندر وہ آئیڈیاز جنہیں اب آپ پیش کر رہے ہیں یہ پٹے ہوئے آئیڈیاز ہیں اور یہ اب نہیں چلتے، ٹھیک ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر وہ اپنا آرگومنٹ اسٹیبلش کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ایک چھوٹے گروپ سے نکل کر ایک جب وہ بڑے گروپ کے اندر آ رہا ہوتا ہے انٹلیکچوئل، کوئی بھی انٹلیکچوئل جو کہ پھر وہ پاپولس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، تو بھی وہ یہ ایوولوشنری ماڈل استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس سے زیادہ گہری ہے بات، کیونکہ یہ رویہ ہے انسانوں کا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ خیالات ارتقائی ہوتے ہیں، یہ ہے اصل بات، اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خیالات ارتقائی ہوتے ہیں۔ اب کون اس کے اوپر مہر صداقت ثبت کرے گا کہ یہ ایوولوشنری آئیڈیاز کہ جو بہاؤ تھا اس میں یہ آئیڈیا جسے آج ہم اب پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آئیڈیا آبسلیٹ ہو چکا ہے، اور اس کے آگے جو آئیڈیاز آئے ہیں وہ ارتقائی طور پر اس سے بہتر ہیں، بلند ہیں یہ آئیڈیاز۔ مثال کے طور پہ آپ جب اب میں یہ اگزامپل نہیں دینا چاہ رہا، لیکن میرا خیال ہے کہ پھر یہ کوشچنس کے بہاؤ اس طرف چلا جائے گا۔ اب یہ آپ لوگ اور کوشچن کریں، پھر میں بتاتا ہوں اس کو۔ اچھا چلے مجھے یہ بتائیں آپ لوگ کہ آپ لوگ کلاسکس کسے کہتے ہیں؟ کیا ہوتی ہے کلاسکس؟ جمال ناصر شکاگو سے بات، آئی تھنک جو لوگ ایبسولوٹ تلاش کر رہے ہوتے ہیں شاید وہ کلاس میں آئے، ایسے اندازہ لگا رہا ہوں۔ نہیں مطلب یہ کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ کلاسیکل سانگ ہے، یہ کلاسیکل ورک ہے، یہ کلاسیکل افسانہ ہے، یہ کلاسکس، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تنویر بول رہا ہوں۔ یہ کلاسکس عموماً جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی آرٹسٹک یا ہیومن مائنڈ کی کریشن جس کے اندر ایسے ایشوز جو ہیں اٹھائے گئے ہوتے ہیں جو اسپیس اور ٹائم سے جو ہیں وہ ماورا ہوتے ہیں، نہیں ماورا تو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اور وہ ایشوز اور وہ سوالات جو ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور اس میں کچھ جو آج سے 5000 سال پہلے یا 3000 سال پہلے جیسے ہومر اس نے کچھ لکھا تو اس کے اندر جو ایشوز ہیں وہ آج بھی جو ہیں وہ وہی ایشوز ہیں، اور ان کے جواب وہ ٹائم کے مطابق پھر جو ہیں وہ ان کی نئی انڈرسٹینڈنگز جو ہیں، لیکن ہیومن پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، یعنی کہ کلاسکس وہ ہے جو کہ اولڈ ہے، ماضی کا حصہ ہے لیکن اولڈ نہیں ہے، وہ ریلیونٹ ہے پریزنٹ کے اندر بھی، ٹھیک ہے نا، یہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی آئیڈیا کو کہتے ہیں کہ یہ ارتقائی عمل سے گزر رہا ہے تو اس میں یہ ہمیشہ ایشو ہوتا ہے کہ اس کا جو سبسٹنس ہے، اس کا سبسٹنس اور اس کی جو فارم ہے اس میں فرق ہے۔ اس کا سبسٹنس جو ہے وہ تو ہسٹوریکل ہے اور وہ ویری کرے گا سچویشن ٹو سچویشن، لیکن یہ جو اس کی فارم ہے وہ جو ہے اے ہسٹوریکل ہو گئی ہے، اے ہسٹوریکل ہے اس کی مینیفیسٹیشن، اور یہ اپنے ہر نئے دور کے اندر یہ ریلیونٹ رہے گا۔ اور انسان کی عام طور پہ جو لوگ آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں یا آئیڈیاز کی کریشن یا پروڈکشن سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا آئیڈیا اگر سبسٹنس کے لیول پہ نہیں تو کم از کم فارم کے لیول کے اوپر
सरवाइव करे हिस्ट्री के अंदर और हिस्ट्री के उतार चढ़ाव के अंदर, ठीक है उसकी सब्सटेंटिव जो फाउंडेशन है वो वेरी कर जाए, लेकिन जो उसकी फॉर्म है वो सरवाइव करे और सस्टेन करे। अब ये कैसे तय होगा कि ये जो आइडिया है इसके जो फॉर्म है ये सस्टेन कर रही है? इसके लिए आपके पास कोई ग्राउंड होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर कोई ऐसा आपका पास पैमाना होना चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये फैसला करें कि ये अब रेलेवेंट नहीं रहा, ये आइडिया रेलेवेंट नहीं रहा, ये प्रैक्टिस रेलेवेंट नहीं रही, ये इदारा रेलेवेंट नहीं रहा, क्योंकि इसके पीछे जो थॉट थी वो ऑब्सोलीट हो गई। मिसाल के तौर पे आप इसको नीचे लेके आते हैं, बहुत नीचे। मिसाल के तौर पे माँ बाप जो है वो अपनी औलाद को जो आइडियाज मुंतकिल करते हैं वो उनके ख्याल के अंदर उन आइडियाज को सिलेक्ट करते हैं जो अपनी औलाद को उन्होंने मुंतकिल करना होता है, जो उनके ख्याल के मुताबिक मावरा है तारीख से और वो सेलिब्रेटेड आइडियाज हैं और उन्हें अपने बच्चों के अंदर प्रैक्टिस होता हुआ वो देखना चाहते हैं, लिहाजा उन चीज़ों को वो अपनी औलाद में मुंतकिल करते हैं। लेकिन उनसे जुड़े हुए जो प्रैक्टिसेस होती हैं जाहिर है कि वो भी फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है प्रैक्टिसेस, उन आइडियाज की जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रैक्टिसेस होती हैं वो भी जो है फिर कंटिन्यू करती हैं एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अगर फर्ज ये है कि एक आइडिया और उससे जुड़ी हुई एक कॉरेस्पॉन्डिंग प्रैक्टिस, माँ बाप तो प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन अपनी औलाद को कह रहे हैं कि ये इससे बचो, ये नहीं करना, ये एक गलत चीज थी, ये एक गलत बात थी और ये नहीं करनी है तुम्हें, आइडिया की सतह के ऊपर भी और आइडिया से जुड़ी हुई प्रैक्टिस की सतह के ऊपर भी। मिसाल के तौर पे लोगों ने कहा कि भाई सिले रहमी करो, सिले रहमी सही है, और फिर माँ बाप बता रहे हैं कि सिले रहमी करना बड़ी फजूल बात है, कोई सिले रहमी नहीं करनी चाहिए, दुनिया बड़ी खुदगर्ज है, खुदगर्जी के साथ जीना चाहिए, जो लोग खुदगर्ज होते हैं वही दुनिया में कामयाब होते हैं, और ये जो सिले रहमी करने वाले साले मारे जाते हैं, इनका कोई आम नहीं, देखो मेरा क्या हशर हुआ, देखो मेरे साथ क्या किया। तो बच्चा कहता है सिले रहमी एक ऐसा आइडिया है जो सिर्फ टैंटे करने के लिए है, लेकिन करने की चीज नहीं है। ये करने के लिए क्या करना है, खानदान से बाहर जाके किसी के करना है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन में करना है, लोगों को दुनिया को दिखाना है, तमाशे करने हैं और उससे अपना इख्तिदार और अपना कंट्रोल दुनिया पे बढ़ाना है, लेकिन सिले रहमी नहीं करनी। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो इंसान खुद प्रैक्टिस करने के बाद उसकी जो कमाईगी है या उसकी जो रिडिक्यूलस मैनिफेस्टेशन है वो उसके सामने एविडेंट हो जाती है। वो कहता है ये आइडिया तो मैं जो है नहीं शिफ्ट करूंगा अपनी औलाद में। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जब हम बच्चे को बड़ा करते हैं तो बच्चे को बेगैरती की तरबियत देते हैं पाकिस्तान के अंदर, यानी कि अगर आपने गैरतमंद की तरह अपने बच्चे को तैयार किया तो उसको कोई ना कोई गोली मार देगा, उसको पुलिस वाला मार देगा, उसको कोई गुंडा बदमाश मार देगा, उसे कोई सियासी लीडर मार देगा, उसे कोई जो है वो कोई भी मार देगा। तो आपको ये बताना होता है बेटे बहादुरी वगैरह जो होती है वो एक किताबी बात है। अगर आपके पास कोई मोबाइल छीनने आ जाए, आप शराफत से मोबाइल दे दो, पुलिस वाला आपसे रिश्वत मांगे, शराफत से रिश्वत दे दो, आपको जो है जज बदमाशी करे तो उसकी बदमाशी बर्दाश्त करो, वकील बदमाशी करे तो उसकी बदमाशी बर्दाश्त करो, आप एक बेगैरत की तरह जिंदगी गुजारो। अगर आपने गैरतमंद की तरह जिंदगी गुजारी तो आप मारे जाओगे और कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि क्या पाकिस्तान में ये आइडियाज जो हैं जो हम किताबों वगैरह में पढ़ते हैं वो नौजवान नस्ल में मुंतकिल करते हैं नहीं करते? तो हम कहते हैं कि ये इनके जो मीनिंग्स थे वो मीनिंग्स जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर होते थे वो कॉन्टेक्स्ट इवॉल्व इस नौयत का हुआ है कि अब आपके लिए उसके ऊपर अमल करना मुमकिन नहीं रहा। ये
हमारा माशरा इवॉल्व नहीं हुआ, लिहाजा हमारा माशरा प्रिमिटिव रह गया, लिहाजा ये इवॉल्व्ड आइडियाज हैं, लेकिन माशरा चूंकि अभी इवॉल्व नहीं हो सका है और निचली सतह के ऊपर है, तो अब अगर तुम इन इवॉल्व्ड आइडियाज के साथ इसमें प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं करेगा। तो कभी कभार क्या होता है कि आप कहते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो इवॉल्व नहीं हुआ है और आइडियाज आपके पास इवॉल्व्ड आइडियाज हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा हो रही है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जमहूरियत का ये हशर है, तो लोग कहेंगे कि पाकिस्तानी जो सोशल कल्चर है और पॉलिटिकल कल्चर है और डायनामिक्स ऑफ पावर है वो कॉन्टेक्चुअली इवॉल्व नहीं हो सका, वो प्रिमिटिव प्री मॉडर्न रह गया और आइडियाज डिस्कोर्स के अंदर आ गए, जमहूरियत और इंसानियत का एहतराम और ह्यूमन राइट्स और फलां और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और फलां कोर्ट और ये कोर्ट और फ्री मीडिया और फ्री प्रेस। लेकिन चूंकि सोसाइटी इवॉल्व नहीं हुई, हिस्टोरिकली कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रही उस एवोल्यूशनरी आइडियाज की का बोझ सहारने के लिए, इसलिए हमारे लिए इन इवॉल्व्ड आइडियाज के ऊपर गुफ्तगू तो हम कर सकते हैं लेकिन हम उन पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो एक इसकी इशू ये होता है कि एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट जो होता है उसमें आप इवॉल्व्ड स्ट्रक्चर्स को इवॉल्व्ड आइडियाज के साथ हम आहंग होता हुआ देखते हैं, ऐसे करके, ठीक है। और कहीं पर आप कहते हैं कि ये आइडियाज चूंकि इवॉल्व आइडियाज हैं लेकिन आपका जो सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका वो इवॉल्व नहीं है इवॉल्व, तो वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा उसको, इस वजह से आपको फ्रिक्शन है। तो हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड के अंदर ये आप कर सकते हैं। इसी तरीके से बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ मजहबी लोग जो होते हैं वो ये कहते हैं कि देखो पहले वैसा माशरा नहीं है, मजहबी माशरा नहीं है, इसलिए वो मजहबी ख्यालात और अफकार जो हैं वो इवॉल्व्ड आइडियाज हैं और ये जो माशरा है ये नहीं है वैसा, तो ये भी इवॉल्व नहीं हुआ, उस लेवल का डिवॉल्व हो गया, नीचे चला गया, इस वजह से वो आइडियाज रिफ्लेक्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो हिस्टोरिकली ये एक प्रॉब्लम रहा है कि जिस लेवल की आइडियाज के अंदर एवोल्यूशन हो उसी लेवल की आइडियाज जो है वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर भी हो। अगर दोनों के अंदर कंपैटिबल रहे ये मूवमेंट के आइडियाज की जो इंस्टीट्यूशनल साइड है वो कॉरेस्पॉन्ड करती हो तो लोगों के लिए उन आइडियाज के साथ प्रैक्टिस करना मुमकिन होता है। लेकिन अगर फर्ज किया कि वो कॉन्टेक्चुअलिटी अवेलेबल नहीं है तो उन आइडियाज की एवोल्यूशन को तो आप रिकग्नाइज करोगे और तारीफ करोगे और वैल्यू करोगे, लेकिन वो आइडियाज आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, वो आइडियाज आपके प्रॉब्लम को इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे कि आपका जो लाइफ फॉर्म है उसके अंदर वो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं है या सिस्टमैटिक कैपेसिटी नहीं है कि वो उन आइडियाज को डाइजेस्ट कर सके। ये तो जितने भी आपने देखे होंगे इस तरह के भाई जो इस तरह की ओपिनियन मेकर्स होते हैं, उनका सारा जोर इस बात पे होता है कि आइडिया तो ग्रो कर गए हैं, एक बार यानी कि जो वो कह रहे होते हैं, जाहिर है कि वो इस तरह नहीं कह रहे, लेकिन वो ये बता रहे होते हैं कि हमें अपनी इदारों को मजबूत करना है। सुना ही जुमले आपने, इदारों को हमें मजबूत करना है, इदारों को वो करना है, जमहूरी इदारों को फरोग देना है, समाजी इदारों को फरोग देना है, सियासी इदारों को फरोग देना है, कानूनी इदारों को फरोग देना है। तो वो क्या होता है, फिर वो लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं। आपने देखा होगा कि वो जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, इधर जाते हैं, जाके बैठते हैं,
फिर जो लोग जैसे आप जैसे लोग हैं जो वहां पे रह रहे हैं वो आके बताते हैं कि ये जो तुम लोगों का जिस तरह से चल रहा है हालात, ये बड़ा डिवॉल्व्ड है। क्यों? क्योंकि जो आइडियाज तुम बात कर रहे हो और जो इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स तुम्हारी हैं, इनमें कोई मुताबिकत सिरे से पाई नहीं जाती। तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करते हैं, फिर बददिल होके भाग जाते हैं। हमारे एक उस्ताद थे जो बाहर रहे हमेशा, तो उनको ये इनके शौक था कि वो लोगों की खिदमत करें और पढ़ाएं। तो वीसी साहब ने उनको कहा कि भाई आप ऐसा करें कि आप हमारी यूनिवर्सिटी आ जाएं, आप तो रिटायर्ड आदमी हैं लेकिन हम आपको अपॉइंट करेंगे। तो उन्होंने कहा मैं फौरन अभी आपको अपॉइंट कर लेता हूँ, अभी आपको मैं अभी इस डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट खाली है, वो फुल प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन कर लें कल से और हम जो है आपके लिए फुल प्रोफेसर की सीट निकालेंगे, तो आप जो है यहाँ आ जाइए। तो वो आ गए बेचारे। आने के बाद वो तो जाहिर है कि लेटर लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे। आर्टिकल लिखने के बाद वो अपने बंदे से उन्होंने कहा कि भाई इसको जो है ना वो मेल कर। तो वो बेचारा मेल करने की कोशिश करता रहा। वो 1 महीना 2 महीना वो मेल ही नहीं कर पाया उसको। क्यों? क्योंकि फंड नहीं थे इतने कि वो उसको भेज सकते। और फिर बहुत महीने 1-1.5 महीने के बाद जब उसने वो भेजा, तो उसके बाद ना ईमेल, उस जमाने में ईमेल का कोई इंतजाम था उसके पास डिपार्टमेंट के अंदर, ना कुछ था। और वो उसने पाकिस्तान पोस्ट से भेज दिया। पाकिस्तान पोस्ट से वो पता नहीं कहाँ चला गया, वो मिला ही नहीं, गायब हो गया। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो इस एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता, और उन्होंने रिजाइन कर दिया और चले गए। तो एक लेवल तो एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट का ये है कि जिंदगी में जो आपके स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है वो ऐसी स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है जो उन आइडियाज का बोझ नहीं उठा सकती जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये तो एक आम अवामी सतह की बात है। अब आ जाए दूसरी, इससे ऊपर की सतह। इससे ऊपर की सतह ये है कि इंसानों के लिए हमेशा से ये मसला रहा है कि उनके लिए सच्चाई को जानना, आप लोगों के लिए सच्चाई को जानना मसला है कि मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। आप लोग कौन कौन सच्चाई जानना चाहते हैं? आप में से हाथ उठाए। सच्चाई जिनका मतलब नहीं, इसमें जो है ताकि ये सेव भी हो जाए। आमिर को सच्चाई चाहिए, ठीक, आमिर का हो गया। और अपना ठीक है, सच्चाई सब लोग ये जो अपना वो है ना पार्टिसिपेंट्स, इसमें हाथ उठा सकते हैं। जैसे आमिर ने उठा दिया हाथ, और अहमद ने उठा दिया, और AR रहमान कौन है? हाँ, AR, अच्छा, तनवीर ने उठा दिया, ठीक है। ये मैं नाम पे आया हुआ अमीन, अच्छा ठीक है, अमीन ठीक है, अमीन हो गया, अशर हो गया, सभी कर रहे हैं भाई। अहमद नदीम नहीं कर रहा, इसको नहीं चाहिए, नहीं, ये बात नहीं कर रहा। कुछ लोग हैं जो बेचारे नहीं करना चाह रहे, कर रहा है तो बाद में भी कर। पहले आप डिफाइन तो कर दें डॉक्टर साहब, ट्रुथ। नहीं, मैं नहीं कर रहा ना पड़ जाए ऐसी। नहीं, मैं कोई फंसा नहीं रहा अभी। नहीं फंसाने की बात नहीं है, लेकिन आप सच्चाई को डिफाइन तो करें कि सच्चाई। नहीं, मैं सच्चाई नहीं, जो भी आप कहते हैं कि भाई मेरा जो मकसद है जिंदगी का वो सच्चाई को जानना है। जो भी सच्चाई है, जो भी चीज है जो उसका ट्रूथ है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सब कर रहे हैं भाई, सबको है, ठीक है। मेजॉरिटी ने कर दिया है इसके ऊपर, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी प्रेजेंटेशन की तरफ, ठीक है। अब देखें कि हिस्ट्री ऑफ आइडियाज जो है उसमें जो एक्चुअल लड़ाई है ना, वो ट्रूथ और ट्रस्ट की है। ट्रूथ वर्सेस ट्रस्ट, सही है। अब जो लोग
ट्रूथ के रास्ते पे होते हैं और वो कहते हैं भाई मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा किसी पे, मैं खुद ही करता हूँ इसको एक्सप्लोर। क्यों? क्योंकि मैं सच्चाई के रास्ते पे हूँ। तो जो लोग कहेंगे कि मैं ट्रूथ के रास्ते पे हूँ, उनके लिए ट्रूथ जो है वो एक एपिस्टेमिक क्लेम होता है, सही है। और जाहिर है कि जैसे हमें पता है कि जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें एक सच्चाई का रास्ता तो नहीं बताया जाता, कोई ये बता रहा है, कोई ये बता रहा है, कोई ये बता रहा है, ये बता, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सच्चाई के रास्ते बता। अब मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं ये कर सकता हूँ कि भाई मैं कहूँ कि भाई मैं तो इस रास्ते पे चला जाता हूँ। तो इस रास्ते पे जो चल रहा हूँ, मैं ट्रूथ के रास्ते पे नहीं चल रहा हूँ, मैं ट्रस्ट के रास्ते पे चल रहा हूँ। मैंने ट्रस्ट कर लिया कि ये जो रास्ता है, ये वाला, ये रास्ता, ये है सच्चाई का रास्ता। इसके लिए मैंने कोई एपिस्टेमिक एफर्ट वगैरह नहीं किया, ना मैं कोई एपिस्टेमिक क्लेम कर रहा हूँ। मैं जो है इस रास्ते पे चल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये सच है। तो मेरे लिए सच्चाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट भरोसा है। मैं भरोसा करता हूँ कि ये सच्चाई है, ठीक है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग ट्रूथ के रास्ते पे हैं या ट्रस्ट के रास्ते पे? चलिए अब आपको बताएं। मैं तो बिल्कुल ट्रस्ट के रास्ते पे नहीं हूँ। इतने धोखे खा चुका हूँ कि अब जब तक खुद फाइंड ना कर लूं मैं मानता ही नहीं। ठीक है, ठीक है जी। तनवीर का आ गया पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तनवीर कह रहा है कि भाई मैं जो हूँ ट्रस्ट। तनवीर, तुम्हारा ट्रस्ट बिट्रे किया है लोगों ने, बिट्रे हुआ है? असल में वो जैसे जैसे पता चला कि ट्रेडिशन क्या होती है, ट्रेडिशन कैसे बनती है, और ट्रेडिशन जो है वो कौन बनाता है, और एक ट्रेडिशन नहीं होती। जब ये सब कुछ पढ़ा तो ये पता चला कि भाई जो कल्चर से हमें ट्रांसफर हो रहा है, यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट, यू हैव टू क्रिटिक इट एंड देन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है। तो तुम्हें ये लगा कि वो जो वो कोई बिट्रेयल नहीं है, वो डिस्टॉर्शन है ड्यू टू द प्रोसेस, ये कह रहे हो? यस, ठीक है। एक बात है, तनवीर ये कह रहा है कि भाई मसला ये है कि वो जो ट्रूथ इमर्ज होता है, ट्रूथ जो इमर्ज होता है वो बुनियादी तौर पर इसलिए इमर्ज नहीं होता कि कोई बैठ के हमारे खिलाफ साजिश या गड़बड़ कर रहा होता है, वो डिस्टॉर्शन हो जाती है ड्यू टू द प्रोसेस, और वो डिस्टॉर्शन हमें भी अफेक्ट कर देती है। ठीक है तनवीर, यही कह रहे हो ना तुम? यानी एक ह्यूमन कंडीशन है और उसकी वजह से ये होता है, हमें इसको करेक्ट करना है, ये बात हमने समझ ली है। ठीक है, और ये हमेशा रहेगी, ये हमेशा रहेगी। ठीक है भाई। डॉक्टर साहब एक तनवीर क्वेश्चन। आगे। जी भाई जी। बगैर ट्रस्ट के ट्रुथ तक कैसे पहुंच सकते हैं आप? हाँ, तुम बोलो, मैं यही तो मसला है। तुम बोलो कि भाई मैं बगैर ट्रस्ट के ट्रूथ पे नहीं पहुंच सकता, मुझे पहले ट्रस्ट करना पड़ेगा, फिर मैं उस रास्ते पे चलूंगा, फिर मैं देखूंगा। तनवीर कह रहा है कि नहीं, मैं जो हूँ ये देखूंगा कि ये बहुत सारे ये है, ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं कि मैं इनमें से ये सब ट्रूथ क्लेम्स हैं। मैं जो है जिस रास्ते पे चलूंगा उसके लिए मेरी अपनी एपिस्टेमिक इवैल्यूएशन होगी, मेरी अपनी एपिस्टेमिक कंडीशंस होंगी, मेरी अपनी एपिस्टेमिक मेथोडोलॉजी होगी। उस मेथोडोलॉजी पे चल के, तनवीर ने एक मेथोडोलॉजी बताई भी है कि भाई मैं क्रिटिकल थिंकिंग के साथ चलूंगा, मैं ये देखूंगा कि जो कल्चरल ट्रांसफरेंस ऑफ ट्रूथ है उसमें कहाँ कहाँ पर डिस्टॉर्शन आया है, उसमें वो डायलेक्टिकल अप्रोच भी इख्तियार कर सकता है, एनालिटिकल कर सकता है, जीनियोलॉजिकल कर सकता है, क्रिटिकल कर सकता है, हर्मेन्यूटिकल कर सकता है, वगैरह वगैरह। डॉक्टर साहब क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो जब ये तो ट्रुथ के पास आप जाएंगे, ट्रस्ट के पास आप जाएंगे, वरना तो ट्रस्ट आप करेंगे ही नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग इज अ प्रीरेक्विजिट फॉर द ट्रस्ट,
or verification is the prerequisite for the truth. सही है. मैं ये देखो, इसमें ये जो मैं मसला यहाँ पे तुम लोगों के सामने रखा है, वो एब्स्ट्रैक्शन में नहीं रखा, वो सिर्फ एवोल्यूशनरी थियरी के कॉन्टेक्स्ट में या एवोल्यूशनरी अप्रोच के कॉन्टेक्स्ट में वो मसला तुम लोगों के सामने रखा है. और जो फोकस है वो ये है कि जो एवोल्यूशनरी अप्रोच है, बेसिकली जो एवोल्यूशनरी अप्रोच है, वो इस झगड़े को जो ट्रूथ और ट्रस्ट का फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में चला आ रहा है, इसको हजारों तरीकों से लोगों ने एड्रेस किया है. सही है. इसके ऊपर हम पूरा कोर्स कर सकते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कर सकते हैं. लेकिन अभी मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूं कि ये ट्रूथ और ट्रस्ट के जो कंपेटिटिव रिलेशनशिप है, इसे आमतौर पे लोग हल्का लेते हैं और बहुत सारे लोग जिसे ट्रूथ समझ रहे होते हैं वो एक्चुअली ट्रूथ होता नहीं है, वो ट्रस्ट होता है उनका. और बहुत सारे लोग जिसको ट्रस्ट कह रहे होते हैं वो एक्चुअली ट्रस्ट नहीं होता, वो उनका परसूट ऑफ द ट्रूथ होता है या ट्रूथ क्लेम होता है उनका, मेथोडोलॉजिकली डेराइव्ड ट्रूथ होता है, वो ट्रस्ट नहीं. वो आपसे ट्रस्ट का तकाजा करते हैं. तो जब वो दुनिया के सामने अपना आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं तो वो ये कहते हैं कि देखो, मैं जो आर्ग्यूमेंट तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ ना, इस पे भरोसा करो इस पे. और दूसरे लोग जो होते हैं, जो उनसे मुतासिरीन होते हैं उसके उस आइडिया के, वो उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं. वो कहते हैं हाँ सही कह रहा होगा ये, ठीक ही कह रहा होगा ये, सही है. बहुत सारे लोगों के पास वो जराए ही नहीं होते कि उस ट्रूथ को वो इवेलुएट करें. उनके पास नामुमकिन है कि वो उनके पास वो जराए हों कि वो ये बता सकें कि ये जो ट्रूथ क्लेम है, जो भी ट्रूथ क्लेम है, वो वाकई ट्रू है या नहीं. उन्हें भरोसा करना पड़ता है कुछ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर. मिसाल के तौर पे, आप कोई आम आदमी, जो आम मेरी तरह का कोई आम आदमी, जो रोड पे घूमने वाला आदमी, उसको कोई आदमी कहे कि भाई जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है वो ठीक है, तो आपके ख्याल में क्या उसके पास ये सलाहियत है और रिसोर्सेज हैं कि वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी के जो ट्रूथ है उसको एपिस्टेमिक क्लेम के प्लेन के ऊपर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे? या है भाई आप लोगों के ख्याल में? नहीं, आप लोगों के है भाई? नहीं है. आप में से किसी के पास है ये सलाहियत? नहीं. हालांकि आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम नहीं कर सकते. हम फिजिक्स नहीं है, हमारे बस से बाहर है, हम नहीं कर सकते ये. हमें भरोसा करना पड़ेगा कि अगर एकेडेमिया ने ये किया है और एक्नॉलेज किया है आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी को, और फिजिक्स के बड़े लोग जो हैं, सिर्फ एक मुल्क के नहीं, एक माशरे के नहीं, बहुत सारे माशरे के, बहुत सारे मुल्कों के, बहुत सारे फील्ड के लोग, उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हाँ भाई, ये जो आइंस्टाइनियन फिजिक्स के बारे आइंस्टाइनियन फिजिक्स है, गो के कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है न्यूटोनियन फिजिक्स से, जिसके मातहत हम जिंदगी गुजार रहे हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स के मातहत जिंदगी गुजार रहे हैं. इसके बावजूद ये मान लेना कि आइंस्टाइन का ट्रूथ क्लेम ठीक है, ये ट्रूथ नहीं है. एक्चुअली मेरे लिए ट्रस्ट है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अब इस ट्रस्ट के पीछे एक इंस्टीट्यूशनल सेटिंग है, एक यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रिसर्च है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंडस्ट्री है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेलिजेंशिया है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट एक्नॉलेजमेंट है, डिग्रीज है. इसके बाद हम ये कहते हैं कि तो भाई ये लोग सब कह रहे हैं तो ठीक ही होगा. इसी तरीके से फर्ज किया कि हम लोग जो है, हमारे खुदा न ख्वास्ता किसी के यहाँ कोई इंसिडेंस हो जाता है और उस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, और एक फोरेंसिक साइंसेस के लोग आकर उसको इन्वेस्टिगेट करके बताते हैं कि यहाँ पर जो क्राइम सीन है, इस क्राइम सीन के ऊपर
फला साहब का जो है वो मौजूदगी पाई गई है, वो साहब तो यहाँ रहते ही, वो तो अमेरिका में रहते ही नहीं, वो तो लेट सपोज टम्बकटू में रहते हैं, तो नहीं टम्बकटू में रहते होंगे, लेकिन उनके फोरेंसिक जो एविडेंस है वो ये बता रही है कि उनका डीएनए मैच कर रहा है उस ब्लड के साथ जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो डीएनए, जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए है या नहीं है, उसको हम एज एन इंडिविजुअल, मैं या आप, हमने देखा है भाई? नहीं देख, हम लोगों ने नहीं देखा। अच्छा, हमें दिखाएंगे वो? नहीं। ये देखें, ये इनका डीएनए, ये जो टम्बकटू में रहते थे चचा छक्कन, उनका डीएनए ये देखें, और ये देखें डीएनए जो दूसरे आदमी का है, मिस्टर पॉल का या एलिजाबेथ का, ये डीएनए में, इनके डीएनए में फर्क होता है। ये किसने आपको बताया कि डीएनए जो होता है जेनेटिक कोड होता है जो कि हर इंसान का यूनिक होता है, और उसकी बुनियाद पर उसकी आइडेंटिटी जनरेट होती है, और वो आइडेंटिटी जो है वो अनट्रू नहीं हो सकती अगर हमने उस मेथडोलॉजी को फॉलो किया जो कि डीएनए एक्सकवेशन की मेथडोलॉजी है, जो कि एक्नॉलेज्ड है दुनिया के अंदर या फोरेंसिक साइंसेस के अंदर। हम कर सकते हैं इसको। वहाब साहब, असल में एक क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि जब हम साइंस की बात कर रहे हैं तो हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, कोट अनकोट, और जो हमारा जो इश्यू फिलॉसफी का है मेनली वो वैल्यूज का है। तो एक यानी फैक्ट्स, जो वैल्यूज हैं वो इंटरनल है, इंसान के अंदर हैं, और जो फैक्ट्स हैं वो क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव हैं, हम उनको एग्री कर सकते हैं, और जो साइंटिफिक कम्युनिटी ऑफ लर्निंग है वो उस पर एग्री करती है, उसको मानते हैं। तो ये एक बड़ा फर्क है कि ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी जो है वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है, नेचर का ऑब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट ऑफ कल्चर है। तो इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग में जमीन आसमान का फर्क होगा। मैं आपको उसी तरफ लेके जा रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जब आपके पास ट्रस्ट जो है वो सब्सटैंशिएट करने का मॉडल साइंटिसाइज्ड होता चला जाता है, तो फिर वो साइंस के डोमेन में नहीं रहता खाली। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो साइंस के डोमेन से निकल के आता है बाहर, फिर वो आता है कल्चर के डोमेन के अंदर भी, वो आता है रिलीजन के डोमेन के अंदर, फिर वो आता है स्पिरिचुअलिटी के डोमेन पर। वहीं से फिर एवोल्यूशनरी थियरी या एवोल्यूशनरी अप्रोच अपने अपने पैरामीटर सेट करती है और डोमिनेट करती है जिंदगी के हर डायमेंशन और हर डायनामिक्स को। मिसाल के तौर पे आपने कल्चर की बात की, तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एक साइंटिफिक वे है टू इन्वेस्टिगेट कल्चर इन इटसेल्फ। लेकिन एक आदमी जो पार्ट ऑफ द कल्चर हो और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की मेथडोलॉजी को रिजेक्ट करता हो, मानेंगे आप उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर को? है तनवीर भाई, आप मानेंगे? क्योंकि ये आदमी पार्ट ऑफ द कल्चर है, ये कल्चर के बारे में जो बता रहा है इसकी बात मैं मान लूंगा, या आप कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात मानेंगे? नहीं, हम तो एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, यही मैं आपको बता रहा हूँ, यही आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली जो डिबेट है एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर, वो इंसान के काबू से निकल गया। ट्रूथ का मामला इंसान बस ट्रस्ट कर सकता है। एवोल्यूशनरी मॉडल के अंदर हम जैसे जो आम मामूली लोग होते हैं वो तो ट्रस्ट करते हैं। तो जिस तरह से लोग रिलीजन के मानने वालों का मजाक उड़ाते थे कि ये लोग जो है लकीर के फकीर हैं, इनको एक बात बता दी गई है, ये उसके पीछे चल रहे हैं और बगैर देखे, बगैर जाने, बगैर सुने भरोसा करते हैं, चर्च के ऊपर भरोसा करते हैं, मौलवी के ऊपर भरोसा करते हैं, पंडित के ऊपर भरोसा करते हैं।
अरे भाई तो इस वर्ल्ड में भी तो भरोसा ही किया जाता है, और किस पे भरोसा नहीं किया जाता। लेकिन आप ये कहते हैं कि ये भरोसा जो है इसके पीछे एक एपिस्टेमिक फाउंडेशन है। अरे भाई उनके पास भी एपिस्टेमिक फाउंडेशन होती थी, उनके पास भी कंफर्मेशन और डिसकंफर्मेशन के मॉडल होते थे, उनके पास भी होता था। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर जो अब ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, उस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर ये कैपेसिटी है कि अगर आप चाहें तो आप इन्वेस्टिगेट करके उस ट्रूथ को क्वेश्चन कर सकते हैं या अनटर्न कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अरे भाई तो वो भी ये कहते थे कि एक पीर दूसरे पीर को पहचान लेता है, वो भी कहते थे। तो बताने का मतलब ये जो मसला है ट्रूथ और ट्रस्ट का, मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। एक मिनट पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं। ट्रूथ और ट्रस्ट का जो मसला है वो अगर आप देखें तो वो ये बताता है आपको कि जिंदगी का ज्यादातर मामला आपको ट्रस्ट के ऊपर गुजारना होता है, ट्रूथ के ऊपर नहीं, ट्रस्ट के ऊपर गुजारना होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ट्रूथ को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो कंटेम्पररी वर्ल्ड में यानी कि 2021 के अंदर ट्रूथ इन्वेस्टिगेशन इतनी कॉस्ट इफेक्टिव है और इतनी टेक्नो साइंटिफिक है कि आप उसको नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे। यानी कि जिंदगी के एक मामले के अंदर आप ये नहीं कर सकोगे। लिहाजा सिवाय आपके इस पे कोई ऑप्शन नहीं है कि जिंदगी के उस दायरे के अंदर आप भरोसा करो उस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को के ऊपर। मिसाल के तौर पे आप सबको चले पहले अहमद आप बात कर लें, आप बात करें। जी डॉक्टर साहब, मेरा भी यही ख्याल है जो आप फरमा रहे हैं कि मैं तो समझता हूँ ईमान का मामला भी इसी तरह का है। लेकिन ईमान बिल गैब उधर हकीकत यही ट्रस्ट ही है। अगरचे बाद में उसकी सच्चाई के दलाइल दिए गए हैं कि खालिक कौन है, जमीन और आसमान किसने बनाए हैं, सच्चाई के दलाइल आगे दिए हैं, लेकिन पहले ट्रस्ट कायम करने के लिए ईमान बिल गैब का कहा गया है। जी। तो मेरे ख्याल में जिंदगी गुजारी इसी तरीके पर जा सकती है कि ट्रस्ट पहले हो, और जैसे आप फरमा रहे हैं सच की तलाश में तो सारी जिंदगी लग जाएगी इंसान की। अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि क्या वाकई जन्नत और दोज़ख सच हैं, तो इसके लिए तो हमें ऐसी पूरी जिंदगी सर्फ करनी पड़ेगी, शायद फिर भी हमें उसका मुशाहिदा ना हो पाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में ट्रस्ट ही पहले नंबर पर है। अच्छा, और दूसरी जी भाई, सब अपनी बात कर लें। अब मैं सिर्फ ये बता रहा था आपको कि ये जो मसला है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा, ये फलसफे का मसला है और ये तकरीबन 2-2.5 हज़ार साल का मसला है। मैं सिर्फ ये बताऊंगा आप लोगों को कि एवोल्यूशनरी मॉडल को जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो क्या ज्यादती कर रहे हैं और कैसे वो अपने डोमेन से ओवर रीच कर रहे हैं, और फलसफे के को टूल बनाकर वो ऐसा समझते हैं, लेकिन एक्चुअली वो फिलोसॉफिकल रहता ही नहीं। जैसे तनवीर ने बताया, तनवीर बता रहा है कि भाई ये तो फलसफे का मामला ही नहीं है, तो साइंस का मामला हो गया। तो एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि एवोल्यूशनरी मॉडल अपने डोमेन में यानी कि वो फिलॉसफी को के अंदर भी आ रहा है, वो रिलीजन के अंदर भी आ रहा है, वो लाइफ के अंदर आ रहा है, वो एवरी डोमेन के इसी प्रोसेस को हम साइंटिसाइजेशन कहते हैं, साइंटिसाइजेशन ऑफ द लाइफ फॉर्म। और साइंटिसाइजेशन ऑफ लाइफ फॉर्म स्ट्रक्चरली इंट्रिंसिकली एवोल्यूशनरी मॉडल है। तो एक्चुअली जब हम एवोल्यूशनरी मॉडल के ऊपर चलते हैं तो हम बज़ाहिर कह रहे होते हैं कि ये फिलोसॉफिकल है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन जो हम लेकर आ रहे होते हैं और फैक्चुअल डाटा जो हम ला रहे होते हैं वो साइंटिफिक डोमेन से ला रहे होते हैं। और उसके ऊपर सिवाय भरोसा करने के, ट्रस्ट करने के, क्योंकि एक कम्युनिटी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर तकाजा करता है कि आप ये भरोसा करो, हम कह रहे हैं हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रस्ट का मामला है कि साइंस जो क्लेम करती है वो
ऑब्जेक्टिवली डिमॉन्स्ट्रेबल है। ये बजाते खुद जिन लोगों ने साइंस को और थियरी ऑफ साइंस को सीरियसली पढ़ा है, फिलोसॉफिकली इन्वेस्टिगेट किया, उन्हें पता है कि ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये भी ऐसा ही फैक्ट है। जो साइंस पढ़े हुए लोग हैं वो जानते हैं ये बात। लेकिन जो सेकंड लेयर इंटेलिजेंस है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो 1 मिनट में जाके आलिम की जबान जो है पकड़ के खींच लेता है कि ये देखो ये फैक्ट आ गया, ये देखो आया फैक्ट, ये आया फैक्ट, ये आया फैक्ट, ये जो आप कह रहे हैं ये डिवॉल्व हो गया, ये है एवोल्यूशन। तो जो एवोल्यूशनरी सेटिंग्स हैं उसको जो लीड कर रहा है फ्रॉम द फ्रंट, वो फलसफा नहीं कर रहा, वो लीड कर रहा है टेक्नो साइंस, वो एक अलग चीज है। अभी हम इसको हम देख लेंगे। पहले आप लोग जो है सब अपनी अपनी जो बात करनी है, अभी हमारे पास 10 मिनट में पहले आप लोग अपनी बात करें, फिर हम आगे चलते हैं। जी आप लोग सब अपनी अपनी बात करें। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि सिर्फ साइंस तक आप क्यों महदूद कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा जो फैक्टर है ये तो थियोलॉजिकल वर्ल्ड में भी उसी तरह से अडॉप्ट हुआ है जो कि वैल्यूज को, और ये हमेशा से यही होता है। जब भी कोई थियोलॉजिकल डिस्कोर्स होता है वो फिलॉसफी में एंड अप होता है। कोई अगर चीज जो है वो फिलॉसफी से शुरू होती है, वो मतलब थियोलॉजी में, साइंस में, हर जगह पे होती है। इसी को तो हम पॉपुलर कल्चर के तौर पे देखते हैं आजकल, अगर आप देखें तो ये इसको हम मतलब हम स्कोप क्रीप तो नहीं कर सकते ना। इसका स्कोप जो है वो तो फिर हर डायमेंशन में देखा जाएगा ना। और वही जो तनवीर भाई ने कहा कि उसको फिर उसी हिसाब से देखा जाएगा कि कहाँ पे ट्रस्ट किया जाए, कहाँ पे वैल्यू रियलाइजेशन की जाए, कहाँ पे डीकमीशनिंग की जाए उसकी, और कहाँ पे उसको कमीशन दिया जाए। तो ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती हैं उस सब्जेक्ट और स्पेसिफिक एरियाज ऑफ नॉलेज में कि जहां पे वो फॉर्मूला फिट होता है और एडजस्ट होता है और इनेबल करता है नई थॉट प्रोसेस को। ठीक है, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। नहीं वो सही है, मगर मसला ये होता है कि मैं पिछली क्लास में जो हमने बात की थी, पहले हमने देखे ये मसाइल वहां पे नहीं किए जानबूझ के। पहली क्लास में अगर ये मैं कर देता, पहली क्लास में मैंने सिर्फ तवज्जो दी थी आप लोगों को ये बताने के लिए कि एवोल्यूशनरी मॉडल ये कहता है कि सच जो है वो इर्तिका है, उसमें इर्तिका, जब इर्तिका हो गया उसमें तो वो सच जो पहले सच था वो सच नहीं रहा, वो ऊपर निकल गया। अब कोई आदमी आगे कहे इस वाले सच की बात करें तो आप कहेंगे नहीं ये तो साबित हो गया ना कि ये डिवॉल्व्ड लेवल है, ये है इवॉल्व लेवल, ये है सच। तो सच रिलेटिव होता है एवोल्यूशनरी मॉडल के अंदर। आप जो बात कर रहे हैं वो स्पेशलाइजेशन का इशू है। अगर एक चीज इवॉल्व हो गई है तो एवोल्यूशन प्रिज्यूम करती है कि ट्रूथ नंबर 1 रिलेटिव होता है, इंफीरियर से सुपीरियर की तरफ मूव करता है, और हिस्टोरिकल प्रोसेस में इवॉल्व होता है। और जब वो एक बार इवॉल्व हो जाता है तो मुमकिन नहीं है कि वो नीचे आए, उस सतह के ऊपर आए, ये नहीं आएगा, ये ऊपर चला गया। इसके नतीजे में जो आपने बताया कि थियोलॉजी के अंदर ये वो फला जो डिबेट्स आती हैं, वो डिबेट्स जो हैं वो क्या डेफिनेट टेक्स्ट की ट्रूथ वैल्यू को क्वेश्चन करती हैं आपके ख्याल में? है किसी में मजाल के वो करेगा ना बाइबल के साथ या तौरात के साथ या कुरान के साथ? उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन तो लेके आती है। नहीं डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ले आए वो, लेकिन सबसे बेहतर इंटरप्रिटेशन कौन सी होगी? सच की सबसे बेहतर इंटरप्रिटेशन कौन सी होगी? जो सच के करीब होगी। सच के करीब कौन सी होती है? जो सच होता है। नहीं, जो सच के जो कैरुल कुरून होता है वो होता है सच। जितना वो उससे दूर जाएगा उतना सच दूर हो रहा है। रिलीजन के अंदर एवोल्यूशन नहीं होता थॉट के प्लेन के ऊपर,
ایکشن اور لائف فارم کے جو چیلنجز ہیں اس کو واپس نیچے لانا ہوتا ہے اس سچائی کے جو ہے. ٹھیک ہے, ایوولوشنری ماڈل اس کا الٹ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی اس سے جان چھڑاؤ, کہاں اس میں اٹکے ہوئے, اوپر نکلو, اوپر آگے بڑھو, آگے بڑھو. سب لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ میں بات نہیں کر رہا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک رویہ ہے, یہ ایک اپروچ ہے فلسفے کے اندر جسے لوگ اختیار کر رہے ہیں. اس کے لیے جو اسٹینڈرڈ وہ بناتے ہیں خیالات کو قبول یا رد کرنے کا, وہ بنیادی طور پر فلسفہ نہیں ہوتا, سائنٹیفک ایویڈنسز ہوتی ہیں, سائنٹیفک ڈسکوریز ہوتی ہیں, سائنٹیفک ڈیریویشنز ہوتی ہیں, اور ایکنالجڈ بائی دا سائنٹیفک کمیونٹی. اس کے نتیجے میں جو اسکوپ آف دا سائنس ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. وہ صرف لائف فارم کو نہیں حل کر رہا, وہ صرف لائف فارم کو حل نہیں کر رہا, وہ صرف چیزوں کی موڈیلٹیز کو نہیں دیکھ رہا, بلکہ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ انسان کو وہ نارمیٹو ہوتا چلا جا رہا ہے, وہ جو ہے وہ پرسکرپٹیو ہوتا چلا جا رہا ہے, جو کہ سائنس کا کام نہیں تھا ہسٹوریکلی. آپ جتنے اوپینین میکرز ہیں ان کو آپ دیکھیں تو ان کا جو پرسکرپٹیو سائیڈ آتا ہے نا, وہ کبھی ریلیجن سے نہیں آتا, وہ کلچر سے نہیں آتا, وہ فلسفے سے بھی نہیں آتا, وہ سائنس سے آتا ہے. اس وجہ سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایوولوشنری ماڈل نے ٹرسٹ اور ٹروتھ کی جو ڈائیکوٹمی تھی, اس کے اندر جس کے اوپر جس کو بھروسہ مند چنا اور جانا اور جانچا, وہ انہیں سائنس لگا. کیوں؟ کیونکہ سائنس پرابلم سالونگ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے, آپ لوگ جو ہے اب سائنس کے ذریعے انویسٹیگیٹ کر کے بتا دو کہ جیسے ابھی ہمارے احمد نے بتایا کہ بھئی جنت جہنم ہوتی ہے نہیں ہوتی, یا اللہ میاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اور پروفٹ کے پاس سچائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ہاں آپ کرتے رہو, لیکن کون کرے گا, اس کی کاسٹ بے ہے. تو ساری کی ساری ٹیکنو سائنس ہے, اس کے اوپر تو بلینز اور ٹریلینز اور زلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ چاہیے. تو وہ کون خرچ کرے گا؟ تو آپ کہیں کہ بھئی یہ شیخوں سے پیسے پکڑ لو, یہ کر لو, وہ کر لو. اگر آپ لوگ تو اٹھتے بیٹھتے ہو گے لوگوں کے اندر, تو لوگوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے ہوئے اور ان پہ وہ پیسے لے رہے ہیں اور ان کے لیے وہ کام بھی کر رہے ہیں. تو بتانے کا مطلب یہ کہ وہ ایوولوشنری ماڈل ہی کی ڈفرینٹ مینیفیسٹیشن ہے. تو جو ہم بتانے کی کوشش کر رہے تھے لاسٹ کلاس کے اندر بھی, وہ یہ کہ چیزوں کی انٹرپریٹیشن کی ویریشن پرابلم نہیں ہے, وہ تو آپ کو ائمہ ثلاثہ میں بھی دکھائی دے گی, وہ بات نہیں ہے. لیکن کوئی ائمہ ثلاثہ کا کوئی بڑا آدمی یا بات کے بھی کسی کی ضرورت ہے کہ وہ یہ کہے کہ جس طرح سے قرآن کو سمجھا ہے پروفٹ نے اور صحابہ نے, وہ کم تر تھا اس انڈرسٹینڈنگ سے جو آج آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہو. کوئی بھی نہیں کہتا, مذہب کا کوئی بھی آدمی نہیں کہتا, لیکن ایوولوشنری ماڈل کے لوگ یہ بات کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اس زمانے کے لوگوں کے پاس یہ سائنٹیفک ایویڈنسز نہیں تھیں, اس لیے ہمارے لیے اس انٹرپریٹیشن پہ چلنا ممکن نہیں ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو اپروچ ہے فلسفیانہ نہیں ہے, سائنٹیفک ہے. بیسیکلی اٹس اے سائنٹیفک اپروچ, اور سائنس جو ہے ایوالو ہو رہی ہے. سوری صاحب آپ کی بات بالکل کلیئر سمجھ آ گئی ایوولوشن کے متعلق, لیکن یہ جو آپ نے بتایا کہ جو سب سے صحیح انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ پروفٹ کی ہے, لیکن آپ اس میں یہ بھی دیکھیے کہ یہ ہمارا فلسفی اور ہمارا جو کلچر اسٹڈیز ہیں اس میں یہ بات کلیئر ہے کہ جو چیز کنکریٹائزیشن ہوتی ہے قرآن کی, وہ ایک اسپیس اور ٹائم کے اندر ہوتی. تو جو کنکریٹائزیشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ سب سے صحیح اور کریکٹ ہے اس اسپیس اور ٹائم کے اندر. لیکن جو فیوچر کی کنکریٹائزیشنز ہوں گی وہ ڈفرنٹ ہوں گی, کیونکہ
اور وہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوں گی, لیکن وہ جو ہے ان کے اندر ڈفرنس آئے گا, بیکاز کہ ہیومن نالج, ہیومن ایکسپیرینس, ہیومن سوسائٹی جو ہے اور وہ چینج ہو گئی ہے. تو اس میں جو قرآن کی کنکریٹائزیشن جو ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نئی اور ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو, لیکن اور وہ پھر جو ہے ایک سٹینڈرڈ بنے گا اس وقت کے لیے کہ یہ سب سے, اور وہ ہم مانیں گے کہ اس میں غلطیاں ہیں, کیونکہ کسی پروفٹ نے نہیں آنا, تو ہم نے ہی انٹرپریٹیشن کرنی ہے اور ہم نے ہی اگری کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے تنویر, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو کوئی قرآن کا عالم نہیں ہوں, میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ ایوولوشنری ماڈل کے اندر وہ ٹروتھ, ایوولوشنری ماڈل کی بات کر رہا ہوں, اسلام کی بات نہیں کر رہا, ایوولوشنری ماڈل کے اندر وہ ٹروتھ جو ایوولوشن کی جس اسٹیج کے اوپر تھا, ٹھیک ہے, جب ایوولوشنری پروسیس کے اندر آپ جس ٹروتھ کے اوپر کھڑے ہوئے, اس کے حساب سے یہ ٹروتھ نہیں ہوتا, یہ ٹروتھ نہیں ہوتا, یہ بتا رہا ہوں, یہ ٹروتھ نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے ٹروتھ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایوولوشنری پروسیس کے اندر لیک آف ایویڈینسز کی وجہ سے جہل تھا, جہل, جس کی وجہ سے لوگوں نے اس پہ کنسنسس کیا تھا. ایوولوشنری ماڈل کی بات کر رہا ہوں, اسلام کی بات نہیں کر رہا, اپنی بات نہیں کر رہا. جو ایوولوشنری ماڈل کے قائل ہیں ان کے حساب سے ٹروتھ ڈسکارڈ کرنا ہے, اس کو ریفرنس کے طور پہ بھی آپ پیش نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈیوالوڈ ہے, یہ ایوالو ہے, یہ ہے سچ, اور یہ بھی اس وقت تک سچ رہے گا جب تک کہ اس سے اوپر نہ چلا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریفرنس پوائنٹ بنے گا وہ ریفرنس پوائنٹ یہ بنے گا کہ آپ نے جو اویلیبل آپ کے پاس ایپسٹمک انفراسٹرکچر اویلیبل ہے, وہ رہنمائی کس سے لے رہا ہے. اس میں جو پرابلم میں بار بار آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں اور وہ سلپ کر رہا ہے, جو آپ کی پکڑ میں آنا, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اسے پکڑ لیں, پکڑ کے پھر بعد میں چھوڑ دیجیے گا. اس طرح ہوتا ہے نا, جس طرح بقرعید میں بکرے کو آپ پکڑے, پکڑ تو لو, پکڑ پھر چھوڑ دینا آپ, پھر اس کو کوئی حلال کرے, اس کی بوٹیاں بنائے, ہمیں کیا. میں کہہ رہا ہوں ایک بار اس کو پکڑ لیں, صرف میں ہی چاہتا ہوں آپ ایک بار اس کو پکڑ کے دیکھیں. پکڑ یہ ہے کہ جو ایوولوشنری ماڈل ہے وہ یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ ٹروتھ کا جو ماڈل سائنس پیش کرتی ہے وہ انویسٹیگیٹو ہے, کراس ایگزامنڈ ہے, اے پرسنل ہے, ڈی پرسنلائزڈ ہے, آبجیکٹو ہے اور ٹرو ہے. لیکن چونکہ آپ اس کمیونٹی کا پارٹ نہیں ہیں, آپ ٹرسٹ کرو بھائی, آپ ٹرسٹ کرو. یہ ہے اصل چیز, اصل جو خطرناک بات ہے, جو سب سے خوفناک بات ہے اس کی, وہ یہ ہے کہ ٹرسٹ سے آپ کی جان پھر بھی نہیں چھوٹ رہی, جان آپ کی ٹرسٹ سے نہیں چھوٹ رہی. آپ جو ہے وہ یہ بھروسہ کرو کہ یہ ویکسین ٹھیک کام کرے گی, آپ یہ بھروسہ کرو. جیسے آپ سب کو پتا ہے نا کینٹکی جو ایکسپیریمنٹ تھا وہ کیا تھا. ہاں ڈاکٹر صاحب ایک منٹ پہلے سے آپ وہاں پہ جائیں, ایک سیکنڈ رک جائیں یہیں پہ, ایک چیز کلیریفائی کر دیں. آپ نے جو کانسیپٹ دیا وہ کلیئر ہو گیا ہے ایوولوشن کا, لیکن یہ ٹائم باؤنڈ ہے اور یہ بیسڈ اپون, آپ نے خود ابھی کہا, یہ بیسڈ اپون دا اویلیبل انفراسٹرکچر اور ریسورسز ہے. تو اس لیے جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ بیسڈ اپون ٹائم باؤنڈ ہوگی. آپ نے جو شروع کیا تھا نا لیکچر, آپ نے کہا تھا واٹ از کلاسکس, ٹھیک ہے. اب آپ وہاں پہ واپس جائیے 1 منٹ کو, تو کلاسک اور وہاں سے اس چیز کو کنیکٹ کیجئے اور پھر مجھے بتائیے کہ آپ اس چیزوں کو لے کے کس طرح نہیں. میں تو جب بھی کوئی سوال کرتا ہوں نا, چونکہ میں نے ساری زندگی اینگلنگ کی ہے, صحیح ہے, فشنگ کی ہے میں نے. فشنگ کے اندر اصول ہوتا ہے کہ آپ کو جب بڑی مچھلی پکڑنی ہوتی ہے
بڑی مچھلی پکڑنی ہوتی ہے تو آپ کو پہلے اپنی بیٹ بال بنانی ہوتی ہے. بیٹ بال بنانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, پہلے ایک بڑا کانٹا لیتے ہیں اور اس کے اندر ایک ایسا چارہ لگاتے ہیں جسے چھوٹی مچھلی نہیں کھاتی, صرف بڑی مچھلی کھاتی ہے, اور وہ کانٹا لگا کے آپ ڈال دیتے ہیں. یہ جو میں نے کلاسک والا تھا یہ وہ کانٹا تھا جو آپ نے اب نگل لیا, صحیح ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو, میں نے ڈالا ہی اس لیے تھا, میں نے بات کی اور پھر میں نے اس کو اڑا دیا, ایسا نہیں تھا. ایسا نہیں, وہ اڑا نہیں تھا, وہ وہیں پھنسا ہوا تھا, وہ اٹک گیا تھا میرے ذہن. وہ میں نے ڈالا ہی اس لیے تھا. تو جو ہمارے یہاں لوگوں نے جس کو حل نکالا ہے اس ایوولوشنری ماڈل کے ساتھ چلنے کا, وہ کلاسکس کا ہے. کلاسکس کا حل نکالا ہے کہ بھئی جس طرح سے لٹریچر کے اندر کوئی چیز کلاسکس ہوتی ہے, جس طرح سے ایک نئی جہت کو دوبارہ سے ایک نئے طریقے سے سمجھنا اور ایک نئے معنویت تلاش کرنا, تو اب یہ ریلیجن کا ہم کیا کریں تھا اس کا, یہ تو ایک ایسا کمبل ہے جیسے میں نہ چھوڑ سکتا ہوں نہ وہ مجھے چھوڑتا ہے, تو اب اس کا میں کیا کروں. تو اس کی حیثیت محض ایک پوئٹری کی ہو کے رہ گئی ہے اس ایوولوشنری ماڈل کے اندر. جس طرح آپ ایک پوئٹری پڑھتے ہو, یعنی کہ فرض کیا ایک آدمی جو جج ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, اپنی ساری دنیا میں جو کام کر رہا ہے نا اس کا اس پوئٹری سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, اور پھر وہ آئے بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے, شب و روز تماشا میرے آگے ہوتا ہے, نیا گھر میں دریا میرے پیچھے گھستا ہے, جبھی خاک پہ دریا میرے آگے ہے, ایما مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کو ٹاپا میرے پیچھے ہے, تو یہ بکواس بازی کرنے کا اس کی جو فیصلے کر رہا ہے اس سے کیا تعلق ہے آپ بتائیں مجھے. جو اس بدماش نے فیصلے کیے, جج نے عدالت میں بیٹھ کے, اس کا اس غالب کی شاعری سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ کیے جا رہا ہے. اور بیچ بیچ میں غالب بھی پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے غالب تو کلاسک. غالب کلاسک ہے تو غالب کا کیا تعلق ہے اس جو فیصلے تو کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے, یہ بتا. نہیں, غالب بس اپریسیشن کے لیے. تو حقیقتاً میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, ریلیجن کی حیثیت ان لوگوں نے بالکل ویسی کر دی ہے ایوولوشنری ماڈل والوں نے. اب میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا, اب ان کے میرے آ رہا تھا, چھند آ رہا تھا کہ میں چڑھ رہا تھا شیطان کے نام لوں, لیکن ایوولوشنری ماڈل والوں نے, جو بھائی بھی یہ کام کر رہے ہیں, انہوں نے ایکچولی ریلیجن کی حیثیت پوئٹری کی کر دی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, پوئٹری جس طرح سے آپ سناتے ہو, جس طرح سے شادی کی پہلی رات جو ہے وہ کھڑا ہو کے کوئی بندہ اپنی بیوی کو ایک پوئٹری سناتا ہے, کوئی زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں, سب لوگ بیٹھے ہوئے نا خاندان والے. اس کے بعد پھر جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فراز کی اس پوئٹری سے. بالکل ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں لوگ ریلیجن کے ساتھ یہی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اٹس اونلی فار اپریسیشن, یعنی کہ کوئی مر گیا تو اس طرح کی باتیں کر لیں, اور جو ہے محرم آ گئے تو اس طرح کی باتیں کر لیں, اور جو ہے اپنا 12 ربیع الاول آ گئے اس طرح کی بات کر لی, کل حضرت علی کی یوم پیدائش تھی اس طرح کی باتیں کر لی. مطلب ان باتوں کا زندگی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ کوئی تعلق ہو نہیں سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ ایوالو ہو گیا, وہ انفراسٹرکچر میں ہے ہی نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح پتہ نہیں آپ یہ کافی ہاؤسز ہوتے تھے, اس کے اندر سارے جو بھائی تھے ضیاء کے زمانے میں وہ ڈیفیٹ ہو گئی تھی, MRD موومنٹ ختم ہو گئی تھی, کولیپس کر گئی تھی, تو وہ سارے جو اولڈ لیفٹسٹ تھے وہ بیٹھتے تھے کافی شاپ میں, کافی پیتے تھے, اور پھر وہ جو ہوتی تھی وہ عورت کا ایک گانا چڑھاتے, دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں. فیض کو بس سن کے سب گھر جا کے الٹے لے کے شراب پی کے الٹے ہو کے سو جاتے تھے. تو اس سے کریں کیا ہم, اس سے ہوگا کیا؟ اور اگر کوئی کہے نہیں میں یہ کروں گا تو کہے نہیں بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ کیا بات کر رہے ہو یار, اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا, اس طرح چل ہی نہیں سکتا. تو آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو ایوولوشنری اپروچ ہے نمبر 1, اب ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں, میری کلاس ہے,
एवोल्यूशनरी मॉडल ये क्लेम करता है कि भाई आपको बुनियादी तौर पर ट्रूथ को जो है वो उसकी एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखना है, उसकी सिस्टमैटिक विजिबिलिटी को देखना है, सिस्टम एक्नॉलेजमेंट को देखना है, सिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को देखना है। मिसाल के तौर पे एक आदमी का मसला ये है कि भाई मुझे बताओ कि मेरे जो है वो बाइसेप्स जो है वो कैसे बढ़े। अब आप कहें कि भाई रिलीजन बताए इसको, रिलीजन कहेगा कि तुम बाइसेप्स बढ़ा क्यों रहे हो, तलवार चलानी है, क्या करना है जी, मुझे छोटी सी नेकर पहन के खड़े होके सबको दुनिया को दिखा। कहे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। कहोगे नहीं, मेरी जिंदगी का तो मकसद, मेरा प्रॉब्लम ये है भाई मेरे बाइसेप बढ़े, बस ये है मेरी जिंदगी मसला। तो आप बताओ कि वो कैसे रहना। तो सिस्टम एक्नॉलेजमेंट भी करता है, सिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होती है उन चीजों के दरमियान जो सिस्टम को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। प्रॉब्लम ही वो नहीं है जो रिलीजन जिसको एड्रेस कर रहा है। तो आप कहें कि भाई रिलीजन सॉल्व नहीं कर रहा प्रॉब्लम, रिलीजन सॉल्व नहीं कर रहा, रिलीजन सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा कि भाई आपका जो प्रॉब्लम है वो रिलीजन का के नजदीक प्रॉब्लम है ही नहीं। रिलीजन कह रहा है इस पे तवज्जो नहीं दो भाई, आप कह रहे हो नहीं मैं तो दूंगा तवज्जो नहीं दो तो फिर जाओ टेक्नो साइंस के पास जाओ। कंफर्मिंग फाउंडेशंस क्या होंगी, वो टेक्नो साइंस होगी, वो तुम्हें बताएगी कि भाई आप चाहते क्या हो। इसके लिए लैंगर पूरा अपना आर्गुमेंट, या फिर मार्केट आपको करके देगी, दोनों करके देंगी। अब उनका साइंस का और मार्केट का रिलीजन के साथ क्या ताल्लुक है डायरेक्टली। वो कह रहे हैं भाई हम फैसिलिटेट करते हैं, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करता है, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करते हैं। और वो आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, आपको एक ऐसा लाइफ फॉर्म बना के देते हैं जिस लाइफ फॉर्म के अंदर प्रॉब्लम जो होता है आपके नजदीक होता ही वो है जो इसमें मजीद इंटीग्रेशन के इम्कानात पैदा करे, मजीद इंटीग्रेशन के इम्कानात पैदा करे। और आपके नजदीक वो प्रॉब्लम जो कि रिलीजन उठाता था या उठा रहा था उसकी हैसियत एक क्लासिकल पोएम की रह जाती है। उसको बस ऐसे ही बकवासबाजी करने के लिए पढ़ना, ऐसे ही बोलना, जिस तरह गालिब जिस तरह नहीं होता पाकिस्तान में कोई बात कर रहे हैं अचानक से आपने एक शेर बोल दिया, अबे इस शेर का क्या ताल्लुक है इस मामले से। तो बताने का मतलब ये है कि एक्सक्लूजन हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव एक्सक्लूजन हुआ है फिलॉसफी का भी, कॉम्प्रिहेंसिव एक्सक्लूजन हुआ है रिलीजन का भी। पोइट्री और साइंस रह गई है, पोइट्री और साइंस, आर्ट और साइंस रह गई है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए आप आर्ट से मस्तियां लेते हो और प्रैक्टिकलिटी के लिए आप साइंस पे इंतजार करते हो। रिलीजन वगैरह जो है मरने के, जमीन से नीचे और आसमान से ऊपर की बात है, इसका क्या ताल्लुक है। और हकीकत ये कि कुछ लोग जो रिलीजन की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली ये समझते हैं कि रिलीजन की वो तशरीहात और वो एक्टिविटी जिस स्पेस और टाइम के अंदर हुई थी वो स्पेस और टाइम चूंकि अब मौजूद नहीं है, लिहाजा वो तो कभी हो ही नहीं सकता ना, तो फिर उस पर अमल कैसे होगा। अमल नहीं होगा, उसका तरीका सिर्फ यही होगा कि पोएम की तरह आप लोग पढ़ लें उसे, पोएम वगैरह पढ़ें। और फिर जैसे मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ पोएम्स हैं, जैसे कोई बाबा ब्लैक शिप के ऊपर खुश हो जाता है, कोई वर्ड्सवर्थ के ऊपर, डैफोडिल्स के ऊपर खुश हो जाता है, कोई जो है वो किसी पे खुश हो जाता है, मुख्तलिफ चीजों पे खुश हो। लेकिन जो वो जिंदगी में एक्चुअली बरत रहा है वो तो टेक्नो साइंटिफिक है, वो मार्केटाइज्ड है। और एवोल्यूशनरी मॉडल कहता है भाई इसी के साथ लग्गा खाना है, इसी के साथ चलना है, यही है सब कुछ। और उसके बाद आप ऐसे ही बड़े बूढ़ों की बातें करना, मरे हुए लोगों की बातें करना, फिर खुश होना, तारीफ करना, फिर ठंडी आहें भरना, फिर अपने घर जाके सो जा, फिर वही काम करना, फिर वही काम करना, फिर वही काम करना। और कोई आदमी कहे नहीं उस तरह हो गए, वो तो स्पेस टाइम नहीं रहा। भाई वो स्पेस टाइम नहीं रहा
تو اور یہ کلاسکس ہے, تو کلاسکس کے بارے میں یہ بھی تو آپ کو پتا ہوگا کہ کلاسکس پرسنل پلین کے اوپر آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے. کلاسکس کی بنیاد پہ کبھی کسی مائی کے لال نے پالیسی میکنگ کی ہے؟ کر سکتا ہے وہ؟ کسی مائی کے لال میں جرأت ہے کہ غالب کی بنیاد پہ کوئی پالیسی میکنگ کر دے, ہومر کی بنیاد پہ کوئی پالیسی میکنگ کر دے, شیکسپیئر کی بنیاد پہ پالیسی میکنگ کر دے, ہیر رانجھا کے اوپر کر دے پالیسی میکنگ؟ کر ہی نہیں سکتا, سوائے اپریسیشن کے کچھ نہیں کر سکتا وہ. اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایوولوشنری ماڈل آپ کو ایک آلٹرنیٹیو ماڈل آف ٹرسٹ دیتا ہے. یہ بڑے ریویلنگ ہے, اس کے بہت سارے میننگ ہیں اگر آپ اس کو غور سے سمجھیں. میں اس کو بولنا نہیں چاہتا لیکن یہ بہت کچھ ریویل کر رہا ہے, بہت کچھ. ٹھیک ہے جی, تو ابھی اس کو ہم یہیں پہ روک لیتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آگے جب چلیں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے. اور اگر نیکسٹ کلاس میں اگر آپ لوگ پھر اس کے اوپر کوئی بات کرنا چاہیں اس کو کریں گے. میں نے پوری یہ والی پریزنٹیشن ایک الگ کانٹیکسٹ میں بنائی ہوئی ہے, اس لیے وہ میں نے آگے نہیں شیئر کی. ہم ایوولوشنری ماڈل کو دیکھ چکے ہیں, اس کا آج ہم نے تھوڑی سی کریٹیک بھی کی ہے, اور ہم نے یہ بتایا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو اس سے کمپیٹنگ ماڈلز ہوتے ہیں ان کی حیثیت محض پوئٹری کی رہ جاتی ہے. اس کی بنیاد پہ کوئی پالیسی میکنگ نہیں ہو سکتی, اس کے نتیجے میں کوئی ڈسکریشن نہیں لیا جا سکتا, اس کی بنیاد کے اوپر کوئی سسٹم آف جسٹس کا کھڑا نہیں کیا جا سکتا, اس کی بنیاد کے اوپر کوئی کنکریٹ لسٹ نہیں بنائی جا سکتی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو ابھی ہم اس کو یہیں پہ روک دیتے ہیں, نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کریں, کیونکہ میری ابھی کلاس ہے. Thank you, Dr. Saab. It was amazing lecture. Really, truly amazing. Thank you. Thank you. السلام علیکم.